everyone. Today we are going to start the exemplar of chapter number 8, that is comparing quantities. So let us start with question number 1. Suppose for the principal P, rate R% and time T, the simple interest is S and the compound interest is C. Consider the possibilities. क्या compound interest simple interest से greater होगा, equal होगा या less होगा. So let we have an amount of rupees 100, rate of interest let us take say 10%. For easy calculation हमने ले लिया. Time period let us say 2 years. You can take 1 year also to check whether the compound interest is more or simple interest. We know the formula for the simple interest, P into R into T upon 100. Principal is rupees 100, rate of interest is 10%, time period is 2 years. So simple interest is rupees 20. Now how to find the compound interest? Compound interest is amount minus principal. So amount के लिए formula है हमारे पास P 1 plus R upon 100 raised to power N. N means time period here. Principal is rupees 100, rate of interest is 10 and N is 2. So 11 by 10 square. So 11 11s are 121. So compound interest आया amount minus principal 21. So simple interest in this case is 20 and compound interest is 21. It means C is greater than S. So only one is correct here. Clear to all of you? Let us move to the next one. Suppose a certain sum doubles in 2 years. कोई प्रिंसिपल है जो कि 2 साल बाद डबल हो जाता है. ये न्यू प्रिंसिपल हो गया आफ्टर 2 years. So टाइम पीरियड इज 2 years. स्मॉल आर है सिंपल रेट इंटरेस्ट के लिए परसेंटेज और कैपिटल आर है रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर कंपाउंडेड एनुअली. राइट नाउ वी विल फाइंड कि whether the rate of interest for simple year is less, greater या equal or can't be decided. You can check simple interest जो है हमारा amount डबल हो गया है. So simple interest P into R into T 2 साल बाद ये डबल हो गया हमारा. तो अगर ऐसा होता है तो कैपिटल R will be less than R. You can check by taking any example. अगर आपने P 100 लिया, रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करो इसके लिए कि वो डबल हो गया. सो सिंपल इंटरेस्ट डबल हो गया प्रिंसिपल. रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने फाइंड करना है. टाइम पीरियड इज 2 years. सो 2 अपॉन P. तो P के इक्वल आ गया एक तरह से रेट ऑफ इंटरेस्ट. यहाँ पे स्मॉल आर है सिंपल इंटरेस्ट के लिए. तो यहाँ पे है स्मॉल आर आपका. तो सिंपल इंटरेस्ट हो गया 2R. नाउ 2 साल बाद जो है वो डबल हो गया तो R हो गया P और अमाउंट इज प्रिंसिपल 1 plus R upon 100 raised to power N. So it will be 100 plus R. R we don't know. तो इसलिए यहाँ पे R की वैल्यू हमें फाइंड करनी है. ये 2 times हो गया, ये हो गया एक तरह से 2 is equals to 1 plus R upon 100 square like this. तो इसको सॉल्व करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है. तो आप इसको ऐसे ही ध्यान में रखोगे कि कैपिटल R जो कि कंपाउंड इंटरेस्ट एनुअली है वो लेस होगा सिंपल इंटरेस्ट से अगर सम डबल हो जाता है. Let us move to next one. The compound interest on this is the principal rupees 50,000. Rate of interest is 4% per annum and the time period is 2 years compounded annually. So we want to find the compound interest. Let us find amount first. P 1 plus R by 100 raised to power N. 50,000 1 plus 4 by 100. So 25 fours are 100. 50,000 25 plus 1 26 by 25.
5 से कैंसिल हो जाएगा, 5 5s are 25, 5 10s are 50, 5 2s are so 2000 here, 5 5s are 25, 5 4s are 20, 400 आ गया, 5 8s are 40, so 26 into 26 into 80. So 80, 26 का स्क्वायर we know how to find. अगर आपको याद है तो ठीक है, 6 स्क्वायर 2 स्क्वायर, 2 6 are 12, 2 are 24, 6 76. So 80 multiply 676. तो क्या आया हमारे पास, मल्टीप्लाई कर लो 676 को 8 से, सो अमाउंट आ गया 80 multiply 676, 8 6 are 48, 4 8 7 are 56 plus 4 60, 8 6 are 48 plus 6 54. So 54080. This is amount. We want to find the compound interest, that is amount minus principal. 54,080 minus 50,000. So what we get, 4,080 rupees. So this will be the compound interest, option B, 4,080. Next one, if the marked price of an article is this, marked price of the article is 1200, discount given is 12%. Discount is always on the marked price, so discount is 12% of 1200 actually. So 12% of 1200, 12 12s are 144 rupees का मिला discount. Now what do we want to find? Selling price. Selling price is marked price minus discount, जो भी discount मिले. Marked price is 1200 minus 144, 10 minus 4, 9 minus 4, 1 minus 1, so 1056. Option A will be the selling price. Clear to all of you? Easy one. So इसके थोड़े से क्वेश्चन डिफिकल्ट भी आएंगे, तो ध्यान से एग्जाम्पल करना है. If 90% of x, 90% of x is 315 kilometer, then the value of x. परसेंटेज का साइन हटाएंगे, अपॉन में आ गया 100, ऑफ की जगह पे मल्टीप्लाई. सो व्हाट डू वी गेट, 315 मल्टीप्लाई 100 बाय 90, 0 से 0 कैंसिल, 9 3s are 27, 45, 9 5s are 45. So x is 350 किलोमीटर. ऑप्शन में ध्यान से देखना है, मीटर के साथ भी ऑप्शन है. So our answer is 350 kilometers. Next one, to gain 12% after allowing a discount of 10%. अगर किसी शॉपकीपर ने 10% का डिस्काउंट दिया है, उसके बाद भी 25% गेन के लिए द शॉपकीपर मस्ट मार्क द प्राइस ऑफ आर्टिकल. कि आर्टिकल पे उसको प्राइस लिखना होगा, मार्क्ड प्राइस, विच कॉस्ट हिम ₹360. सो लेट मार्क्ड प्राइस तो हमें पता नहीं कितना उसने लिखा. लेट मार्क्ड प्राइस इज ₹x. कॉस्ट प्राइस उस आर्टिकल की है 360. अगर मार्क्ड प्राइस में से डिस्काउंट माइनस कर दिया जाए, डिस्काउंट किस पे होता है, मार्क्ड प्राइस पे. सो मार्क्ड प्राइस माइनस डिस्काउंट, दैट इज इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस. अब सेलिंग प्राइस क्या है, वो कह रहे 25% गेन हो. अगर कॉस्ट प्राइस 360 है, उस पे भी 25% डिस्काउंट के साथ उसने उस चीज को बेचा. तो सेलिंग प्राइस हो गया कॉस्ट प्राइस प्लस गेन. मैं यहाँ पे ब्रैकेट में लिख रही हूँ ताकि आपको ध्यान रहे कैसा आया, कॉस्ट प्राइस प्लस गेन. अब गेन है 25% का, सो x माइनस 10% ऑफ x, 360, 25 4s are 100, 4 9s are 36. So 36 plus 90. So
x माइनस 1/10, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 10 माइनस 1 9x/10 इज इक्वल्स टू 9 प्लस x 15, सो 450, x आ गया 450 मल्टीप्लाई 10/9, 9 5s are 45, 50 into 10 500। तो अगर शॉपकीपर मार्क्ड प्राइस 500 रखता है, 10% डिस्काउंट देता है, तब भी उसको 25% का गेन होगा। सो एक्स इज ₹500। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? दोबारा से बता रही हूँ, मार्क्ड प्राइस उसने आर्टिकल पे नहीं लिखा था, लेकिन कॉस्ट प्राइस 360 है उसको, और उसको बेचने पे 25% डिस्काउंट हो रहा है, चाहे उसने 10% का डिस्काउंट भी दिया है आर्टिकल पे। सो मार्क्ड प्राइस माइनस डिस्काउंट इज द सेलिंग प्राइस, और जो सेलिंग प्राइस है दैट इज कॉस्ट प्राइस प्लस गेन, दैट इज 360 प्लस 25% ऑफ 360। मार्क प्राइस हमें नहीं पता था, हमने मान लिया x, उस पे दिया है 10% का डिस्काउंट, so x minus 10% of x is equals to 360 plus 25% of 360. So mark price of the article is 500. Let us move to next. If A% is the discount percent on the marked price, then the discount is. So discount क्या होता है? Marked price पे। अब हमें कहा है A% डिस्काउंट मिल रहा है, सो A% ऑफ किसका? मार्क्ड प्राइस का, एंड मार्क्ड प्राइस इज X, सो डिस्काउंट की वैल्यू क्या होगी? A/100 मल्टीप्लाई X, एंड विच ऑप्शन इज द करेक्ट वन? ऑप्शन सी। ध्यान से देखना है कि गलती नहीं करनी है, A/X नहीं है, X/A नहीं है, A/100 into X, so option C will be the correct one. Next one, Ashima took a loan of ₹1 lakh at 12% per annum, compounded half yearly। जब भी क्वेश्चन में आए कंपाउंडेड ईयरली है, हाफ ईयरली है, क्वार्टरली है, उसको अंडरलाइन करो, क्योंकि क्वेश्चन उसी के अकॉर्डिंग होगा, फॉर्मूला उसी के अकॉर्डिंग लगेगा। She paid 1,12,360। if 1.06 स्क्वायर की वैल्यू हमें दी हुई है, then the period for which she took the loan means हमें टाइम पीरियड फाइंड करना है, टाइम हमें फाइंड करना है। अब कंपाउंडेड हाफ ईयरली तो अमाउंट वाला फॉर्मूला लग रहा है, P 1 plus R/100 raised to power n। नाउ कंपाउंडेड हाफ ईयरली है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12% पर एनम। अगर कंपाउंडेड हाफ ईयरली कर दिया तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हाफ हो गया, 6% कंपाउंडेड हाफ ईयरली, राइट। और टाइम पीरियड जब हाफ ईयर होता है, हाफ ईयरली होता है तो डबल हो जाता है, तो एन की जगह 2n ईयर्स हो गया टाइम पीरियड, तो हमें n की वैल्यू यहाँ पे फाइंड करनी है। सो अमाउंट 1,12,360, प्रिंसिपल इज 1 लाख, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 6। यहाँ हम क्या करते हैं, 12/200 R/200 भी लिख देते हैं यहाँ पे, फॉर्मूला में चाहो तो आप कर सकते हो, चाहो तो यहाँ पे फाइंड कर सकते हो, चॉइस इज योर्स, राइट। तो ये हमारा हो गया 6/100, टाइम पीरियड इज डबल, हाफ ईयरली है तो, सो 1,12,360, 1 लाख इधर आके हो गया डिवाइड। नाउ ये आ गया हमारे पास 106/100, 0 से 0 कैंसिल, तो हमारे पास क्या आया, 11236 upon 4 zeros are there, 1 2 3 4 is equals to 2 5s are 10, 2 3s are 6, 53/50 raised to power 2n। अब यहाँ पे देखो 1.1236, अगर मैं इसको चेंज करूं तो डेसिमल में यही आया 1.1236, और ये हमें दिया है 1.06 का स्क्वायर है, हमें कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ी,
इट इज गिवन टू अस कि ये इसका स्क्वायर है. सो 53/50, अगर मैं यहाँ पे इसको 53/50 नहीं करती तो देखो क्या आता है. अगर इधर भी डेसिमल में चेंज कर दूं तो 1.06, क्योंकि मुझे दोनों तरफ 1.06 मिल रहा है तो मैं इसे कन्वर्ट नहीं कर रही 1.06. अब दोनों तरफ बेस सेम है, बीच में इक्वल का साइन है, इक्वेट करेंगे तो पावर्स भी इक्वल होंगी. So 2n is equals to 2. So what we get, n is equals to 1. So 1 year time period के लिए अगर वो लेगी तो जो अमाउंट उसे पे करना होगा that is 1,12,360 rupees. So time period is 1 year. Next one. For the calculation of interest compounded half yearly, keeping the principal same, which one of the following is true? जब हम हाफ ईयरली करते हैं तो हम रेट ऑफ इंटरेस्ट को हाफ कर देते हैं और टाइम पीरियड को डबल कर देते हैं. ठीक है, तो चेक करो किसमें था. डबल द गिवन एनुअल रेट, नो, एनुअल रेट तो डबल नहीं होता, तो यहीं पे ये रॉन्ग हो गया. Double the annual rate as well as number of years, wrong. Half the given annual rate, yes. As well as given number of years को भी half करते हैं, no, उसे double करते हैं. So half the given annual rate, right. Double the given number of years, right. So option D is the correct one. अगर compounded half yearly है तो rate of interest half होगा, time period double होगा. Next one. Shama purchased a scooter costing rupees this. This is the cost price of scooter, that is rupees 36,450 and rate of sales tax. अब उस पे टैक्स भी लगा है. Then the total amount paid. सेल्स टैक्स लगा है 9% का. अगर हम मार्केट से कोई चीज परचेज करते हैं तो प्लस हमें अमाउंट में टैक्स भी देना होता है. मान लो हमने अगर इतने की चीज खरीदी, अब इस पे 9% टैक्स है, सो प्लस 9% ऑफ वही प्राइस जिसपे हमने वो चीज खरीदी है. सो 36,450 प्लस 0 से 0 हो गया कैंसिल, तो इसे मल्टीप्लाई करते हैं. मल्टीप्लाई करने पे क्या आया, 9 5 are 45, 36 plus 4 40, 9 6 are 54 plus 4 58, 27 plus 5 32 upon 10. तो ये लग गया डेसिमल, तो ऐड कर लेते हैं 0.5, 36450, 3280.5 ऐड करें. 0, 8 plus 5, 6, 7 and 1, 6 plus 3, so 397 here, 39730.5. So this amount he will have to pay, 39730.50. Option number B is the correct one. Next one. The marked price of article is given rupees 80. So marked price is rupees 80. Selling price is given rupees 76. Now we want to find the discount percent. Discount rate हमें find करना है. कितना परसेंट डिस्काउंट मिला, किस पे मिलता है, मार्क्ड प्राइस पे. लेट द डिस्काउंट परसेंट बी x%. हमने मान लिया कि उसको x% जो है वो डिस्काउंट मिला है. ठीक है. Now marked price minus discount is equals to selling price. Marked price is 80 minus x% of 80, marked price पे ही discount मिलेगा, is equals to 76. So 80 x upon 100 into 80, 76. Now 0 से 0 cancel. So 80, 76 को हम इधर ले आए, 8 by 10x, 10 minus 6 4. So x की वैल्यू आ गई 4 multiply 10 by 8, 4 2s are 8, 2 5s are 10. So discount percent is 5%.
So option A will be the correct one. Marked price was given, selling price was given. We want to find the discount percent. Okay, clear this one? Mark price was given, selling price was given. We want to find the discount percent. Now let us move to the next one. A bought a tape recorder for ₹8,000, sold it to B. A ने खरीदा, B को बेच दिया. B in turn sold it to C. B ने आगे C को बेच दिया. मतलब 3 पर्सन थे, A, B and C. A ने B को बेचा और B ने आगे C को बेच दिया. Each earning a profit of 20%. A ने कॉस्ट प्राइस कितने में खरीदा था? 8,000. प्रॉफिट कितना हुआ उसको? 20%. So 20% of 8,000. 8 2s are 2 0 कैंसिल हो गई. 2 8s are 1600 का उसको प्रॉफिट हो गया. तो सेलिंग प्राइस हो गया उसके लिए 8,000 प्लस 1600, 9600 रुपीज. अब जो उसने बेचा 20% प्रॉफिट पे, तो ये जो ए का सेलिंग प्राइस था वो बी के लिए हुआ कॉस्ट प्राइस, राइट. ए ने 20% प्रॉफिट पे बेच दिया, जो मतलब उसका सेलिंग प्राइस आया वो बन गया बी का कॉस्ट प्राइस. अब बी ने भी प्रॉफिट अर्न किया है 20% का, तो बी को प्रॉफिट हुआ तो उसने कितने की चीज बेची होगी? 6 2s are 12, 9 2s are 18 and 1 19, 20. So इसके पास सेलिंग प्राइस आ गया 9600 प्लस 1920, 0 2 9 plus 6 15, 10 and 1 11. So 11,520 का बेचा, वो कॉस्ट प्राइस बन गया सी के लिए. अब आगे पढ़ते हैं. हम हमें क्या कहा है? A and B on the same profit. क्या सेम है प्रॉफिट? इसका है 1600, इसका है 1920. तो ये तो नहीं है कि सेम प्रॉफिट तो दोनों का नहीं है. A earns more profit. 1600 is less than 1920. ये A का प्रॉफिट है, ये B का, तो A का ज्यादा नहीं है. A earns less profit than B. Yes. A का जो प्रॉफिट है that is less than B. So option C is the correct one. Clear? चले next पे. Okay, let us move to the next one. Latika bought a teapot for rupees this. So this is the cost price of the teapot, and set of cups for rupees 400. 400 के उसने cups भी खरीदे. So this is the cost price for teapot, and cups के लिए cost price है 400. Okay, next चलते हैं. She sold a teapot at the profit of 5%. अगर उसने teapot बेचा 5% profit के साथ, so 5% of 120, 0. 12 5s are 60 upon 10. तो 6 रुपीज का प्रॉफिट हुआ, तो सेलिंग प्राइस हो गया कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट. सो 120 प्लस 6 मींस उसने जो टी पॉट था 126 रुपीज का बेचा, और कप्स के लिए उसको लॉस हुआ 5% का. सो 5% ऑफ 400, 20 रुपीज का लॉस हुआ, तो सेलिंग प्राइस हो गया कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस. 400 माइनस 20, तो 380 का उसने कप्स को बेचा. द अमाउंट रिसीव्ड बाय हर. अमाउंट रिसीव्ड बाय हर मीन्स द सेलिंग प्राइस ऑफ बोथ द आइटम्स. अमाउंट रिसीव्ड बाय हर, उसको कितना अमाउंट मिला? सेलिंग प्राइस ऑफ टी पॉट वो मिला होगा, प्लस सेलिंग प्राइस ऑफ कप्स, दोनों को बेच के जो मिला that is the amount received by her. So 126 plus 380,
6, 8 plus 2, 10, 3 and 1, 4 and 1, 5. So 506 rupees she got. Clear? Next one. A jacket was sold for this. So this is the selling price of the jacket, 1120. Discount was given after allowing a discount 20%. Now we want to find marked price. So marked price हमें पता नहीं है. So let marked price of jacket is rupees X. So marked price minus discount, that is the selling price of the article. X marked price है, 20% डिस्काउंट मिला है, तो सेलिंग प्राइस है 1120. 25 are 100. Take the LCM. 5x minus x, 4x by 5 is equals to 1120. So x is 1120. Multiply 5 by 4. 4 2s are 8, 32. 4 8s are 32. 0, 8 5s are 40. 5 2s are 10 and 4 14. So 1400 is the marked price of the jacket. Clear? Let us move to next. A sum is taken for 2 years. 2 सालों के लिए लिया गया है 16% per annum rate of interest के साथ. If interest is compounded after every 3 months quarterly, the number of times for which interest is charged in 2 years. तो 2 साल में कितनी बार इंटरेस्ट लिया गया. सो हमें टाइम पीरियड ही बताना है. अब हर 3 महीने बाद लिया गया 2 साल. 2 years मतलब कितने मंथ्स हो गए? 2 into 12, 24 months, right? अब हर 3 महीने बाद लिया गया. So 24 divided by 3, तो 8 times जो है उससे इंटरेस्ट लिया गया. ठीक है? That was easy. There was no calculation here. The original price of washing machine which was bought, cost price हो गया 13,500 inclusive 8% VAT. So this is the original cost price. क्योंकि इसमें VAT भी include है, तो हमें original find करना है. इस cost price में VAT is also included. So let the original cost price be rupees X. ओरिजिनल अमाउंट उसका x रुपीस था. अब x में 8% वैट अगर इंक्लूड किया गया तो 13,500 रुपीस देने थे, राइट? सो x प्लस 8 अपॉन 100x 13,500. टेक द एलसीएम 108, so 13,500 multiply 100 upon 108. So जहां पे कैंसिल होता है कैंसिल करो and find the original amount. Okay, 135 2, चलो 2 से कट करते हैं पहले. 2 5s are 10, 2 4s are 8, 2 6s are 12, 2 7s are 14, 2 5s are 10, again 2, 2 2s are 2 7s are 2 3s are 6, 2 2s are 2 3s are 6 again 15, 2 7s are 14, 2 5s are 10. 3 से कैंसिल हो जाएगा. 3 9s are 3 1s are 3 1s are 3 2s are 6, 3 5s are 15, 5 6 7 8 9. Sum of the digits is 9, again divisible by 3. 3 3s are 9, 22, 3 7s are 21, 3 5s are 15, 3 1s are 3, 3 2s are 6, 3 5s are 15. So 12500, that is X.
ओके, इज इट क्लियर? तो यहाँ पे हमने ओरिजिनल प्राइस फाइंड करना था. यू कैन चेक दिस कि अगर हमने 12,500 की खरीदी, उस पे 8% हमने वैट दिया, तो ओरिजिनल अमाउंट हमें कितना पड़ा. ठीक है, मतलब हमने कितना पे किया. यू कैन चेक दिस. So answer is 12,500. Let us move to next one. Avinash bought an electric iron. उसने electric iron खरीदी. So cost price of electric iron is given. That is 900. Sold it at a gain of 10%. Gain होगा cost price पे. So 10% of 900. So that is 90 rupees. So it means selling price is cost price plus gain. 900 की खरीदी थी, 90 रुपीस गेन के साथ 990 की उसने बेची. आगे he sold another electric iron. एक और आयरन खरीदी सेम कॉस्ट प्राइस पे, लेकिन वो बेची 5% लॉस के साथ. अगेन लॉसेस ऑन कॉस्ट प्राइस. सो 45 रुपीस का उसको लॉस हुआ. सो सेलिंग प्राइस इज कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस. 900 minus 45, 10 minus 5, 9 minus 4, so 855 की उसने बेची. अब आगे क्या कहा है? ऑन द ट्रांजेक्शन, उसको ट्रांजेक्शन पे क्या हुआ. सो टोटल कॉस्ट प्राइस प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ. टोटल कॉस्ट प्राइस दोनों के लिए आ गया 1800 एंड टोटल सेलिंग प्राइस दोनों को बेचने पे उसे कितना मिला 990 प्लस 855 दैट इज रुपीज 5 1845 राइट. एक मिनट, यहाँ पे आगे था विच वॉज बॉट रुपीज 1200. दूसरी आयरन उसने सेम प्राइस पे नहीं खरीदी थी, 1200 की खरीदी थी. तो वी विल हैव टू चेंज दिस. जस्ट अ मिनट. ओके, सो नेक्स्ट का कॉस्ट प्राइस था 1200. 12 5s are 60. So 1200 minus 60, that was the selling price of the another iron. 0 10 minus 6, so 1140. So total cost price हो गया 1200 plus 900, that is 2100. And total selling price is 990 plus 1140, that is rupees 2130. Now selling price is greater than the cost price, so हमें क्या होगा profit. और कितने अमाउंट का, that is selling price minus cost price. 2130 minus 2100, 30 rupees. So what we get, profit of rupees 30. So option C will be the correct one. चलिए नेक्स्ट पे चले. A TV set was bought. So this is the cost price of TV set 26,250 including 5% VAT. So VAT is also included. So original price of TV set. Let original price of TV set is rupees X. अब X ओरिजिनल था, उस पे 5% वैट दिया, तो हमने पे करे 26,250. 5 2s are 20 plus 1 21x by 20, that is 26250. So find the value of X from here. 26250 multiply 20 by 21. 3 7s are 21. चेक करते हैं, 3 से कैंसिल होता है. 6 plus 2 8 plus 2 10 plus 5 15. Yes, sum of the digits is 15. 3 8s are 24. 3 7s are 21. 3 5s are 15. 7 से चेक करते हैं डिवाइड हो रहा है कंप्लीटली कि नहीं. 7 1s are 7, 17, 7 2s are 14, 7 5s are 35,
So 125 into 2 is 250 and 2 zeros are there. So original price was 25,000. Clear to all of you? 125 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 250 and 2 zeros are there. एक बार चेक करके देख लेते हैं, अगर आप लोगों को कोई कंफ्यूजन है तो। चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, 25,000 प्लस 5% वैट, चलो देखो कितना आया, 25,000, 25 2 जा 125 प्लस 1250 ऐड कर लो, 05226,250, ये हमने चेक करके देखा है, ठीक है। 25,000 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 19. ओके, दैट वन वाज इजी। 14% ऑफ किसका, 100 माइनस 20% ऑफ 300। पहले ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं। ओके, 100 2 3s are 660, so 40% of 40, find the value, percent 40 0 0 and 4 4s are 60, so answer will be option B 16. Next one. Okay, Radhika bought a car, इतने रुपीस की कार खरीदी, next year its price decreased by 10%. next year जो प्राइस है कम हो गया 10%, further next year it decreased by 12%, उससे भी अगले साल 12% कम हो गया। in 2 years overall कितना डिक्रीज हुआ? So cost price of the car is 2,50,000. Next year price decrease by 10%. Next year price decrease by 10%. So क्या price बन गया next year? Price became 2,50,000 minus 10% of 2,50,000, प्राइस कम हुआ है नेक्स्ट ईयर 10%, सो 2,50,000 माइनस ये हमारा आ गया 25,000, सो 2,50,000 में से 25,000 माइनस किया, मींस नेक्स्ट ईयर ये कार जो उसने 2,50,000 की खरीदी थी 2,25,000 की रह गई। अब अगले साल नेक्स्ट ईयर, फर्दर नेक्स्ट ईयर फिर से डिक्रीज हुआ प्राइस में, फर्दर नेक्स्ट ईयर प्राइस डिक्रीज्ड बाय 12%। अब जो फर्दर डिक्रीज हुआ है वो 2,25,000 से हुआ है। मान लो आपने कोई एक चीज खरीदी 100 रुपए की, नेक्स्ट ईयर उसका प्राइस हो गया 80 रुपीज, उससे नेक्स्ट ईयर हो गया 60, तो 80 से भी और कम हुआ, सो 2,25,000 के बाद फिर से 12% डिक्रीज हुआ, सो क्या आया, मतलब और नेक्स्ट ईयर सेकेंड ईयर कितनी कॉस्ट हो गई उसकी, मल्टीप्लाई करो 225 को 12 से, so we get 27,000, minus करो 15 minus 7, so 1,98,000 की हो गई सेकेंड ईयर में। अब हमें पूछा था दोनों सालों में मिला के ओवरऑल कितना डिक्रीज हुआ, सो इन 2 years ओवरऑल डिक्रीज परसेंट हमें फाइंड करनी है। ओरिजिनल जब उसने खरीदी थी तो 2,50,000 की थी, अब रह गई 1,98,000 की, और जब उसने खरीदा था 2,50,000 का था,
मल्टीप्लाई 100%। जैसे गेन परसेंट फाइंड करते हैं कि इतने रुपए का गेन हुआ अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100%। सो माइनस किया, क्या आया 52,000 अपॉन 2,50,000 मल्टीप्लाई 100%। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गई, ये भी 2 जीरो कैंसिल हो गई। 520 अपॉन 25%। सो जो भी कैंसिल होता है करते हैं। 5 5 आर 5 1 आर 5, 5 4 आर 20, डिवाइड करेंगे 5 2 आर 10, दो डिजिट एक साथ उतारेंगे 0, 5 8 आर 40। सो ओवरऑल 20.8% उसका जो प्राइस है वो कम हो गया। क्लियर? पहले हमने देखा कि पहले साल में उसका प्राइस कितना रह गया डिक्रीज होने के बाद, दूसरे साल में कितना रह गया, और 2 सालों में ओवरऑल कितना डिक्रीज हो गया। Clear to all of you? So that's all for today. We will continue next questions in the next class. Till then, bye bye. Take care.